Hello, my dear students. Welcome to Talking Textbooks, Leaving No Child Behind. Today we are going to talk about power कि हम लोग power का formula किस तरीके से calculate करते हैं and power actually में क्या होती है and how it is related to the work done, the various terms related to the power, इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है, राइट, इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में भी हम बात करेंगे. सो बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे चैप्टर का थर्ड पार्ट है, दैट इज पावर. Alright, so we are going to learn all the things we need to learn about the power. Alright, so let's get started. And for this, I'm going to tell you that we do deal with the school examination as well as the Olympiad. So if you are the one who is learning for the school examination or the Olympiads, then these lectures are for you. You can watch these video lectures and you can gain access to the knowledge you need to get the good marks, right? That is the main thing we are going to provide you here. Now see, if you want to get the DPPs and study material, you can access them through our channel TTB009. ये आपको कोड लिखना होगा for that 9th channel in the search box of the Telegram app, and then 9th channel appear होगा. You can join that channel. You can access all the DPPs and study material along with the notifications of the video classes. Now see, this is the team which is going to help you a lot, as we are putting so much effort for you all and we are trying to provide you the content you need to understand and know so that you can get the good marks in your examination. That is our goal, and we are going to provide you this for more you can say extent, right? And that is the main thing we can provide it to you. Now the best thing is that these video lectures are free for everybody, right? So what you need to do, you need to watch these video lectures so that you can get access to the knowledge, right? Then revise that knowledge, learn from that knowledge, right? And then you can definitely going to get the good marks. And the next thing what I need to understand you too, that हमारे पास ये जो lectures provided हैं, ये lectures है quality content. We are providing this from Kota to you all, right? And this is the main thing we are providing you. What you need to do is to learn and you need to share, right? That is the most important thing, so that the students which are not able to afford the quality education, they can watch the video lectures and they can do all the necessary tasks and the knowledge and the questions they need to do, so that they can try to get good marks. And that is the main important thing. So make sure that you study from these video lectures and make sure that you share these video lectures to everybody. Alright, now see, in accordance to that, providing the video lectures free for everybody, in accordance to that we have also provided the packages for you all, right? And for that you need to go on our website www.talkingtextbooks.in. so if you go on our website, you are going to get the two type of packages over there, the full package and the test series, right? Full package includes all the necessary things you need to understand, that is the study material, live classes, like or you can say the homework submission feature, bi-weekly quizzes, periodic test papers. These are the things you need to understand, you need to have, so that you can study from those, you can test out yourself, you can do the homework, and then you are able to get the good marks or the good rank. And if you want to know just the testing part, you just want to test yourself, you want to know which topic is you can say hard for you, easy for you, so you can join the test series. Test series included the periodic test papers, bi-weekly quizzes and the recorded and live classes. Alright, so you can buy these packages or you can join us, right? So basically if you want to buy these packages, then you can write my code CYLIVE to get a 30% discount. And if you want to call us and want to know more about these packages, then you can call us on the number 919549041111. Alright, so that is a good thing for you all, right? Now you can know more about these packages. Also if you want to, you can join them, right? Chaliye. Now this is the time for promise. So promise yourself that you will be watching the whole lecture, you will be making proper notes and you will be revising on a daily basis. That is the most important thing you need to understand about this. Alright, so revision is the key. अभी से आप अपने इन topics को बहुत strong कर लीजिए, अपने basics को बहुत strong कर लीजिए, so that whenever you study these topics in the next coming you can say classes, right? Like in the 11th you are going to study these topics again. So basically at that time you will be a little bit farther or ahead in your class, and that would be a so much cool thing, right? So revision will take you there. So what you need to do is you need to revise more and more and more. Alright, so let's start and see. We are going to talk about the power here. Alright, so we are going to study about the power. What is power? How it is used or described in physics? How you can calculate that in physics?
and what is the electric power, the electric energy. We are going to talk about these things. Alright. So, well, you will be going to study the power, the formula for powers for various situations, units of power, electric energy. So you are going to do that. Even I will tell you how to calculate your electricity bill. That is what is important also. ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग स्टार्टिंग करते हैं पावर से. ऑलराइट, व्हाट इज इट, है क्या ये पावर? अब देखिए, जब हम लोगों ने वर्क डन सीखा था, ठीक है, तो हम लोगों ने क्या सीखा था कि भाई एक पर्सन है. ऑलराइट, लेट्स टेक एन एग्जांपल फॉर दैट. यहाँ पे एक पर्सन है, ठीक है, और उसे इस बॉक्स को लेकर जाना है. ऑलराइट, यहाँ इस पोजीशन से लेकर उसे इस पोजीशन तक लेके जाना है. ठीक है, दिस इज द फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉक्स, दिस इज द इनिशियल वन. ये इस बॉक्स को इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक लेकर जाना है. और यहाँ पर इस काम को करने के लिए, मतलब इस बॉक्स को यहाँ से इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक ले जाने के लिए देयर आर टू पर्सन्स. लेट्स से टू पर्सन्स, अ स्ट्रॉन्ग वन एंड अ वीक वन. ऑलराइट, ये जो स्ट्रॉन्ग पर्सन है और जो वीक पर्सन है वो क्या करेंगे, बहुत मेहनत करेंगे, अपनी सारी एनर्जी लगा देंगे. दे विल पुश दिस बॉक्स फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल वन. ऑलराइट, सो बेसिकली हम ये बात जानते हैं, जो स्ट्रॉन्गर पर्सन होगा तो वो तो जल्दी लेकर चला जाएगा. राइट, यहाँ से इनिशियल से फाइनल तक जो स्ट्रॉन्गर पर्सन होगा वो तो जल्दी से जल्दी लेकर चला जाएगा, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग है, उसके अंदर ज़्यादा एनर्जी है. सो ही कैन यूज दैट. एक वीक पर्सन हो सकता है 5 घंटे ले ले, 6 घंटे ले सकता है, एंड इवन वो ज़्यादा टाइम ले सकता है, बहुत ज़्यादा टाइम ले सकता है, मे बी इट मे बी पॉसिबल. ठीक है, बट इवेंचुअली वो इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक लेकर जा सकता है. ठीक है, तो यहाँ पे जो काम किया गया है, मतलब जो स्ट्रॉन्ग पर्सन ने काम किया है और जो वीक पर्सन ने काम किया है, वो तो दोनों सेम है. क्यों सेम है? क्योंकि इन दोनों की पोजीशन सेम है, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन सेम है. तो यहाँ पर ये जो दोनों काम किए जा रहे हैं, ठीक है, दोनों वर्क डन वुड बी द सेम. ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे फोर्स सेम लगेगा, डिस्टेंस सेम लगेगा. राइट, दैट इज वाई कि जो वर्क डन है वो दोनों सेम होंगे. बट क्योंकि स्ट्रॉन्ग पर्सन ने जल्दी इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक पहुंचा दिया और वीक पर्सन ने लेट इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक पहुंचाया, सो वी कैन से दैट कि यहाँ पर एक्चुअली में पावर का डिफरेंस आ गया. वर्क डन वुड बी द सेम, वर्क डन सेम है, बट पावर का डिफरेंस आ गया. अब क्योंकि स्ट्रॉन्ग पर्सन क्या कर रहा है, जल्दी से लेकर चले जा रहा है. ठीक है, इनिशियल से फाइनल तक जल्दी से वो लेकर चला गया बिकॉज ही स्ट्रॉन्ग. जब वो जल्दी से लेकर गया तो टाइम तो कम लगेगा. लेट्स से कि उसने ये काम 1 घंटे में ही कर लिया. ठीक है, और जो वीक पर्सन है, लेट्स से उसने ये 5 आवर्स में किया. ठीक है, काम दोनों का सेम था, वर्क डन वुड बी द सेम बिकॉज डिस्टेंस इज सेम एंड फोर्स इज सेम. बट यहाँ पर जो पावर है दैट इज डिफरेंट. ठीक है, सो व्हेन वी टॉक अबाउट पावर, यहाँ पर हम टाइम को इंक्लूड कर लेते हैं. जब हम वर्क डन कल कैलकुलेट करते थे तो वहां पे टाइम का कोई फैक्टर नहीं था. तो वर्क डन तुम चाहे 2 दिन में करो, 5 दिन में करो, 10 दिन में करो, 1 साल में करो, वो सेम ही रहेगा, उसका वैल्यू चेंज नहीं होगा. ठीक है, बट यहाँ पे जब हम पावर की बात करते हैं तो वहाँ पर टाइम एक फैक्टर इंक्लूड हो जाता है. तो आप जितना जल्दी काम को कंप्लीट करोगे तो आपके पास मतलब उतना जल्दी पावर है, उतना ज़्यादा पावर है. और आप जितना देर में काम को कंप्लीट करोगे, ठीक है, जितना ज़्यादा आप टाइम लगा रहे हो, आप देर में काम कर रहे हो, तो इसका मतलब आपके पास पावर कम है. ठीक है, तो ये जो पावर है ये एक ऐसा क्वांटिटी है जो वर्क डन और टाइम को जोड़ देता है, रिलेट कर देता है. ठीक है, तो इनके बेसिस पे वी कैन कैलकुलेट द पावर, वी कैन गेट द पावर. ठीक है, सो दिस इज इट. यहाँ पर ये जो पावर की हम बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे कर रहे हैं काम को और टाइम को, दोनों को जोड़ रहे हैं. ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एडिंग दैम लिटरली, बट रिलेटिंग दैम एक तरीके से. वी आर यूजिंग बोथ ऑफ दीज क्वांटिटीज, वर्क डन एंड द टाइम, टू गेट द पावर. ठीक है, सो देखिए, द अमाउंट ऑफ वर्क डन फॉर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर. आप कितना काम करते हैं, कितने टाइम में कर रहे हैं, ये पावर है आपकी. आप अगर थोड़े देर में ज़्यादा काम कर पाते हैं, आपकी पावर ज़्यादा है. आप बहुत टाइम में थोड़ा सा काम कर पाते हैं, आपकी पावर कम है. ठीक है, दैट इज द पावर विच रिलेट्स द वर्क विद द टाइम. अब देखिए, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर. तो ये दोनों डेफिनेशंस हैं, आप इन दोनों को अपने हिसाब से याद कर सकते हैं और यू कैन से रिमेंबर कर सकते हैं. सो दीज आर द डेफिनेशन ऑफ द पावर. इसको फटाफट से आप लिख दीजिए.
ऑलराइट, चलिए अब हम बात करते हैं फैक्टर्स जिनके ऊपर पावर डिपेंड करती है, ठीक है। सो पावर को कैलकुलेट करने के लिए यू विल बी नीडिंग ओनली टू फैक्टर्स, दैट इज द वर्क डन एंड द टाइम, राइट। सो पहला फैक्टर जिसके ऊपर पावर डिपेंड करती है वो है वर्क डन। और ये वर्क डन कौन कर रहा है? ये वर्क डन जो भी पर्सन कर रहा है उसके पावर की बात हो रही है, ठीक है। सो अगर इफ सम पर्सन इज पुशिंग अ ब्लॉक, तो हम वो जो काम कर रहा है वो किस पे डिपेंड है? वो पर्सन पे डिपेंड है, बिकॉज दैट पर्सन डूइंग द वर्क। तो हम किसकी बात करेंगे कि उस पर्सन में कितनी पावर है कि वो इतना काम कर पाए, राइट। सेकेंड आप देखिए टाइम, इस काम को करने के लिए उस पर्सन ने कितना टाइम लिया, ऑलराइट। तो ये दो फैक्टर्स है जिनके ऊपर पावर डिपेंड करती है। सो हाउ कैन यू कैलकुलेट द पावर? फॉर्मूला फॉर पावर इज power is equals to work done divided by time taken. Alright, so this is power. Work done divided by the time taken. ठीक है, कितना काम किया जा रहा है, कितने टाइम में किया जा रहा है, this is going to tell you the power of the person or the body, जो भी बॉडी काम कर रही है, ठीक है। सो दिस इज द पावर, दैट्स हाउ यू कैन कैलकुलेट इट। फटाफट से आप इसको नोट कर लीजिए एंड देन वी विल बी लुकिंग अप टू द यूनिट्स ऑफ द पावर। ऑलराइट, चलिए अब हम यूनिट्स की बात करते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट द यूनिट्स हियर। एसआई यूनिट क्या होती है? वॉट। पावर की एसआई यूनिट क्या होती है? वॉट, ठीक है। तो कई जगह आपने सुना होगा कि भाई जो बल्ब होता है वो 60 वॉट का बल्ब है, 100 वॉट का बल्ब है। तो एक्चुअली में हम बल्ब की पावर की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। सो वी कंपेयर दी पावर, अलग अलग वॉट के अगर बल्ब अवेलेबल हैं, दैट मीन्स वहाँ पे हम बोल रहे हैं दैट अलग अलग पावर्स के बल्ब अवेलेबल हैं, ठीक है। सो तुम अपने अकॉर्डिंग यू चूज कर सकते हो भाई तुम्हें कितने पावर का बल्ब चाहिए। इसी तरीके से एसआई यूनिट ऑफ द पावर इज दी वॉट, ये उसका यूनिट होता है, ठीक है। हालांकि वेरियस यूनिट्स होती हैं, आई विल बी टेलिंग यू, बट फर्स्ट आप इसका डेफिनेशन देखिए। 1 वॉट इज द पावर ऑफ अ मैन और अ मशीन कैपेबल ऑफ डूइंग वर्क एट द रेट ऑफ 1 जूल पर सेकेंड। अगर कोई पर्सन, कोई बॉडी अगर 1 जूल पर सेकेंड काम कर रही है, मतलब 1 जूल का काम वो पर सेकेंड कर रही है, तो यू आर गोइंग टू गेट द 1 वॉट पावर, राइट। तब हम बोलेंगे कि भाई उस पर्सन की, उस बॉडी की जो पावर है दैट इज 1 वॉट, ऑलराइट। इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं? 1 वॉट इक्वल्स टू 1 जूल अपॉन सेकेंड। तो नाउ यू कैन रिलेट दी वॉट, वॉट रिलेट कर सकते हो? जे पर सेकेंड, दैट इज जूल पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे आप वॉट को कन्वर्ट कर सकते हो इन जूल पर सेकेंड, ऑलराइट। तो यहाँ पर एक कन्वर्जन आपको पता चल गया है। अब देखिए ये जो 1 वॉट पावर है ये काफ़ी कम है, काफ़ी कम है। तो कभी कभी हम किसी ज़्यादा बड़ी मशीन की बात करते हैं या फिर किसी ज़्यादा बड़े पर्सन की बात कर रहे हैं जिसमें बहुत पावर है। अगर हम ऐसी बात कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं? बिगर यूनिट्स को यूज़ करते हैं। एंड व्हाट कैन बी द बिगर यूनिट्स है? देखिए बिगर यूनिट है किलोवाट, यानी कि 10 की पावर 3 वॉट। देखिए मेगावाट यानी कि 10 की पावर 6 वॉट। गीगावाट यानी कि 10 की पावर 9 वॉट, ठीक है। तो मतलब बहुत वेरियस टाइप्स ऑफ मशीन्स होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा पावर होल्ड अप करके रखती हैं, ठीक है। तो हम उस केस में बड़ी बिगर यूनिट्स को यूज़ करते हैं, बड़ी यूनिट्स को यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग पावर यानी कि वॉट ओनली, ठीक है। अब बात आती है कमर्शियल यूनिट की। सो बेसिकली जब कभी भी आप जैसे जब हम कभी किसी कार के इंजन की बात करते हैं तो हम लोग किस तरीके से बोलते हैं कि भाई इस इंजन की जो पावर है दैट इज 150 हॉर्स पावर, राइट। ऐसा हम बोलते हैं। हॉर्स पावर सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है। ये जनरली उन बच्चों को पता रहता है जो ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल जो है चीज़ें पढ़ते रहते हैं, ठीक है। सो देखिए कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर इज हॉर्स पावर एंड 1 हॉर्स पावर इज 746 वॉट, ठीक है। तो मतलब ये किलो वॉट से तो छोटा होता है, बट 746 वॉट यहाँ पर
जो है उसको हम 1 हॉर्स पावर बोल देते हैं। अब तुम सोचोगे कि वाई इज इट ओनली हॉर्स पावर, सिर्फ घोड़े से ही क्यों कंपेयर किया गया है इसी। सो देखो मैं आपको एक बताती हूँ कि यहाँ ये जो हॉर्स पावर है ये क्यों यूज किया गया और कैसे यूज किया गया, ठीक है। सो देखो ये बात तो हमें पता है कि स्टीम इंजन किसने इन्वेंट किया था, थॉमस न्यूकॉमन ने, ठीक है। स्टीम इंजन किसने इन्वेंट किया था, लेट मी राइट इट सो दैट यू कैन गेट अप टू दी फैक्ट्स फास्टर। देखो थॉमस न्यूकॉमन, ठीक है। थॉमस न्यूकॉमन इज द पर्सन हु इन्वेंटेड द स्टीम इंजन, ठीक है। और इस स्टीम इंजन के पहले क्या किया जाता था, वेरियस टाइप्स ऑफ एनिमल्स को यूज किया जाता था कि पुश करे पुल करें यूजिंग दी ऑल द चीज़ों को यहाँ से वहाँ से ले जाना, तो पुलिंग पुशिंग और हैवी ऑब्जेक्ट्स को उठाना, ये सब काम किसके ऊपर थे, एनिमल्स के ऊपर थे, बिकॉज तब तक मशीन्स नहीं थी। फिर थॉमस न्यूकॉमन ने स्टीम इंजन को बनाया, ठीक है, ही इन्वेंटेड दैट स्टीम इंजन, ठीक है। और धीरे धीरे क्या हुआ, पुशिंग पुलिंग और बड़ी बड़ी चीज़ों को उठाना, भारी चीज़ों को उठाने के लिए हमने इंजन्स को यूज़ करना स्टार्ट किया, ठीक है। फिर आते हैं जेम्स वॉट। जेम्स वॉट ने क्या किया, इसी स्टीम इंजन का एक बहुत ही अच्छा और यू कैन से बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ इंजन बनाया, ठीक है। और फिर उनको लगा कि भाई उनको ये इंजन जो है काफ़ी लोगों को बेचना है, भाई हमको तो बहुत सारे लोगों को ये मेरा इंजन है, ये मैंने बनाया है और मुझे ये बेचना है, एंड दिस इज वेरी मच इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ द स्टीम इंजन, जो कि अब तक न्यू कॉमन का जो स्टीम इंजन है वो लोग यूज कर रहे थे, ठीक है। सो उन्होंने सोचा कि मेरे स्टीम इंजन को किस तरीके से मैं लोगों को बताऊंगा कि ये कितना ज्यादा स्ट्रांग है स्टीम इंजन से, ये बताने के लिए उन्होंने काफी टाइम लिया, उन्होंने काफी सोचा इस बारे में। और उस वक्त क्या होता था, वहां पर घोड़ा गाड़ी चलती थी, जैसे हमारे यहाँ पे बुलेट कार्स चलते थे, वहां पर घोड़ा गाड़ी चलती थी, तो दे यूज हॉर्सेस टू पुल द कार्ट, ठीक है। सो उन्होंने फिर सोचा कि क्यों ना इससे रिलेट करके हम सबको बताएं कि मेरा जो इंजन है वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावर का है। सो देन ही गॉट कि भाई मेरा जो इंजन है, जब उन्होंने मार्केटिंग करना शुरू किया अपने इंजन का, तो जेम्स वॉट ने बोला कि ये जो इंजन है ये 10 घोड़ों जितनी पावर रखता है, ठीक है। तो मतलब ये जो है इंजन वो 10 घोड़ों को रिप्लेस कर सकता है, ठीक है। तब वहां से ये वर्ड आता है हॉर्स पावर, दैट मीन्स उनका जो इंजन है दैट कंटेन्स द 10 हॉर्स पावर, राइट। ऐसा उन्होंने लोगों को बताया। जब उन्होंने लोगों को बताया तो बात बहुत अच्छी उनकी वो होने लगी, काफ़ी लोगों ने इसको जो है काफ़ी इम्प्रूव किया, मतलब उन्होंने इसको बहुत ज़्यादा चेरिश किया कि भाई ये एक ऐसा इंजन है जो काफ़ी ज़्यादा यू कैन से स्ट्रॉन्ग है, पावर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सो दे यूज्ड इट इंस्टीड ऑफ द स्टीम इंजन देन, तब किया। और उन्हीं उसी टाइम पर बाकी सारे जो इनके कॉम्पिटिटर थे उन लोगों ने भी हॉर्स पावर का यूज करना शुरू कर दिया कंपेयर करने के लिए कि भाई हमारे इंजन में इतनी पावर है जितनी इतनी हॉर्स पावर होती है, राइट। सो दे स्टार्टेड कंपेयरिंग द पावर ऑफ अ इंजन विद द हॉर्स पावर, राइट। सो वहां से लेके अभी तक हम लोग हॉर्स पावर को ही अब तक यूज करते आए हैं, एंड हियर कम्स द एक्चुअल यूज ऑफ द हॉर्स पावर, ठीक है। सो बेसिकली हम लोग जनरली हॉर्स पावर को यूज करते हैं एज अ कमर्शियल यूनिट ऑफ द पावर, ये बताने के लिए कि भाई घोड़े में जितनी होती है शक्ति उसके इतने टाइम्स इस इंजन में है, ठीक है, एज अ कंपैरिजन यू कैन से, ऑलराइट। तो अब आप फटाफट से इसे नोट कर लीजिए। Alright, now let's move on up to the next thing जो कि हमें पता होना चाहिए, and that is what is the power हम जब कैलकुलेट करेंगे in various types of situations over there, ठीक है। तो हम अलग अलग situations में पावर को यूज करेंगे। पहला जो हमने सिचुएशन लिया, हाउ टू कैलकुलेट दी पावर, आपको इससे पता चलेगा कि आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग किस तरीके से पावर को कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पर देखो हमने क्या सिचुएशन लिया हुआ है, कंसीडर अ फोर्स F एक्टिंग ऑन अ बॉडी दैट इज डिस्प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स बाय अ डिस्टेंस S। सो एक बॉडी को एक जगह से धक्का मार के फोर्स अप्लाई करके दूसरी जगह तक हम लेकर गए हैं। सो यहाँ से वहां तक लेकर जाने में कितना पावर वहां पर बॉडी की है ये हमें पता करना है,
ठीक है। तो देखो इस पोजीशन से ए पोजीशन से बी पोजीशन तक बॉडी को लेकर हम लोग गए फ्रॉम यूजिंग द फोर्स एफ एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज द एस हियर, ठीक है, यूजिंग टाइम टी। तो अब देखो यहाँ पे तुम जो पावर यहाँ पर कैलकुलेट करोगे, पावर टू मूव अ बॉडी, ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो पावर का फॉर्मूला अब तुम जान चुके हो, ठीक है, दैट इज वर्क डन डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन, ठीक है। तो टाइम तो हम लोगों ने टी बोल दिया है, टाइम का तो कोई दिक्कत नहीं है, वर्क डन आया। अब आप ये बात जानते हो भाई, वर्क डन जब कभी ऐसा होता है कि भाई फोर्स और जो डिस्टेंस है वो एक ही डायरेक्शन में, मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी एंड द फोर्स आर इन द सेम डायरेक्शन, तो आप क्या करते हो, आप डायरेक्टली वर्क डन को लिख देते हो एफ डॉट एस, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल है तो मैं कैपिटल ही यूज करूंगी, ठीक है। यहाँ पे हम जो एस यूज कर रहे हैं वो कैपिटल है, एफ डॉट एस, ठीक है। अब ये एफ डॉट एस हम लोग यहाँ पर रख देंगे, इस पूरे के वर्क डन को रख देंगे डब्ल्यू की जगह पर। सो पावर वुड बी हाउ मच, एफ डॉट एस डिवाइडेड बाय टी, दिस वुड बी द पावर इन दिस सिचुएशन। अगर आपको फोर्स पता है, आपको पता है डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है बॉडी का और उसको ये पूरा डिस्प्लेसमेंट करने में कितना टाइम लगा है, यू कैन कैलकुलेट द पावर यूजिंग दिस एफ एस बाय टी, ठीक है। ये पहली सिचुएशन थी, फटाफट से नोट कर ले, फिर हम नेक्स्ट सिचुएशन पे जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सिचुएशन पे चलते हैं। नेक्स्ट सिचुएशन के लिए हम लोग अभी पावर कैलकुलेट कर रहे हैं जब हमें कोई एक मूविंग बॉडी है उसको रोकना है, ठीक है। तो मतलब पहले से कोई बॉडी मूव कर रही है और हमें यहां से पावर लगाकर उसको रोकना है। रोकने के लिए डेफिनेट सी बात है अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, राइट। तो वो हम पावर किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे? सो देखो, कंसीडर अ फोर्स एफ एक्टिंग ऑन अ बॉडी अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी। जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव करे उसके अगेंस्ट हम लोग फोर्स लगा रहे हैं ताकि वो बॉडी रुक जाए। द बॉडी इज स्टॉप्ड इन टाइम टी आफ्टर ट्रेवलिंग थ्रू अ डिस्टेंस एस। सो बॉडी ने क्या किया, ए से बी तक ट्रैवल किया, ठीक है, और उसने एस डिस्टेंस जो है डिस्टेंस ट्रैवल किया, टी टाइम में ट्रैवल किया, एफ फोर्स नेगेटिव डायरेक्शन में लग रहा है। सो यहाँ पर पावर कितना होगा? अगेन पावर का फॉर्मूला तो क्या होता है, वर्क डन बाय टाइम। यहाँ पर वर्क डन कितना होना चाहिए, फोर्स डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में कितना एंगल बन रहा है, cos 180 डिग्री, राइट। cos 180 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, -1। तो यहाँ पे मुझे मिल गया है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द वर्क डन हियर, ये है इसका वर्क डन, ठीक है। तो अब बस हमें वर्क डन को रखना है पावर के फॉर्मूले में। सो इट वुड बी माइनस एफ डॉट एस डिवाइडेड बाय टी, ठीक है। सो दिस वुड बी द पावर। अब यहाँ पे आपको नेगेटिव साइन दिख रहा है पावर का, इसका मतलब ये नहीं है कि पावर कम हो रही है, इसका मतलब है कि पावर अपोजिट डायरेक्शन में लगाई जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन शोज द पावर इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे जो माइनस साइन है एक्चुअली में ये आपको डायरेक्शन बता रहा है, पावर का डायरेक्शन बता रहा है, ऑलराइट। सो फटाफट से इसे फटाफट से लिख लेंगे, फिर हम थर्ड पर आएंगे। चलिए थर्ड पर आते हैं। सो दिस इज द थर्ड कंडीशन, हम किसी बॉडी को पुल करने की कोशिश करें, ठीक है, तब हम कितना पावर अप्लाई करेंगे, ठीक है। सो पावर टू पुल अ बॉडी, अब हम जब किसी बॉडी को पुल करते हैं तो फोर्स कैन बी अप्लाइड इन एनी डायरेक्शन, ठीक है। तो हमने ये माना है कि भाई ये जो फोर्स है वो हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर अप्लाई किया जा रहा है, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ दिस फोर्स बॉडी ए पोजीशन से बी पोजीशन तक चली गई है, ठीक है, वो मूव कर रही है, डी एस डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया है, टी टाइम में ट्रैवल कर लिया है, ऑलराइट। सो यहाँ पर अगर
एस इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन टाइम टी। तो पावर कितना होगा, पावर विल बी वर्क डन बाय टी। वर्क डन कितना होगा हमें सब पता है ना, वर्क डन कितना होगा, W इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा। तो देखो एफ का कंपोनेंट इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन दैट इज विद एस, ठीक है। सो एफ एस कॉस थीटा वुड बी द वर्क डन हियर, यहाँ पे बस आपको डायरेक्टली पुट कर देना है। तो पावर विल बी एफ एस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन। सो दिस वुड बी द फॉर्मूला फॉर द पावर। ऑलराइट, इसे फटाफट से नोट कर लेंगे। चलिए, नाउ लेट्स कम टू दी फोर्थ वन, पावर टू लिफ्ट अ बॉडी अगेंस्ट ग्रेविटी, ठीक है। और इसका वर्क डन हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया था, ठीक है। तो देखिए, जब कभी भी आप किसी बॉडी को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लेकर जाएंगे, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लेकर जाएंगे, एच हाइट आप उसको ऊपर उठा रहे हैं, उसका पोजीशन चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो वर्क डन है वो हम किसके अगेंस्ट कर रहे हैं, ग्रेविटी के अगेंस्ट कर रहे हैं, राइट। एंड हम लोग क्या कर रहे हैं, हम फोर्स कितना लगा रहे हैं, उसके वेट के बराबर फोर्स लगा रहे हैं, राइट। एंड जितना डिस्प्लेसमेंट बॉडी का हुआ है, ठीक है। तो ये बातें बस हमें ध्यान में रखनी है। तो पावर वुड बी अगेंस्ट वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। अब यहां पर वर्क डन जो है, दिस वर्क डन इज, क्योंकि ये अगेंस्ट ग्रेविटी है, राइट। तो मतलब जो फोर्स है, ग्रेविटी का जो फोर्स है वो तो नीचे की तरफ लग रहा है, राइट। यहां पर जो ग्रेविटी का फोर्स है दैट इज mg, फोर्स वुड बी mg, ठीक है। और जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो तो ऊपर हो रहा है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट इज द हाइट h, राइट। तो यहां पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हम लोग देख रहे हैं, बट फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना एंगल है, 180 डिग्री। फोर्स तो लग रहा है नीचे और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऊपर। सो यू कैन से कि हमें अगर ग्रेविटी के अगेंस्ट कोई वर्क करना है तो हम उतना ही फोर्स लगाएंगे जितना ग्रेविटी लगा रही है, लेकिन हम लोग डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं। सो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी वुड बी इन दोनों के बीच का डायरेक्शन, एंड दैट वुड बी, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 180 डिग्री है। डिस्प्लेसमेंट इन द अपवर्ड डायरेक्शन, फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो 180 डिग्री यहां पर होगा। सो वर्क डन वुड बी माइनस का mgh, दैट इज फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, माइनस का साइन, दोनों में 180 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। तो बस फटाफट से पावर में इसको रख दो, माइनस का mgh बाय t, ठीक है। सो दिस वुड बी द पावर नीडेड टू displace the body in the gravitational force or the against the gravitational force we can say, ठीक है। फटाफट से इसे नोट कर लेंगे। चलिए, अब हम नेक्स्ट करते हैं, एंड नेक्स्ट इज द पावर ऑफ अ बॉडी मूविंग विद वेलोसिटी v। सो कोई बॉडी है, अगर वो मूव कर रही है विद वेलोसिटी v, ठीक है, हम क्या करेंगे, देखेंगे कि किस तरीके से हम उसकी v वेलोसिटी और फोर्स, ठीक है, इनको हम कनेक्ट कर सकते हैं। कैसे, देखिए, पावर जो होगी दैट वुड बी, यू कैन से वर्क डन सिंपल बाय टाइम, ठीक है। फिर आप फोर्स लगा रहे हैं उस बॉडी पर, राइट। सो दैट मीन्स इट वुड बी फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय द टाइम। ऑलराइट,
यहाँ पे हमें एक चीज पता है, और वो क्या, हमें यहाँ पे गिवन है v वेलोसिटी से बॉडी मूव कर रही थी। अब क्योंकि वो v वेलोसिटी से मूव कर रही है और यहाँ पे हमें कहीं वेलोसिटी दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, कोशिश करोगे तो जरूर दिखेगा। देखो फोर्स, ये जो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, दिस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज व्हाट, वेलोसिटी। सो वी कैन राइट हियर फोर्स इनटू वेलोसिटी। तो हम यहां से भी पावर कैलकुलेट कर सकते हैं एज दी फोर्स मल्टीप्लाइड बाय दी वेलोसिटी। ठीक है, सो यू आर गोइंग टू गेट द पावर इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू वेलोसिटी। ठीक है, सो इस तरीके से हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, फटाफट से नोट कर लेंगे इसे। चलिए अब हम आगे बात करते हैं अगला टॉपिक की, एंड दैट इज द इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, सो देखिए इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है। इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है कि भाई कितना काम किया जाए कि करंट कंटिन्यूसली फ्लो होता रहे। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि करंट स्टॉप हो जाए। सो वो वर्क डन जो कि चार्जेस पे किया जाता है, सो दैट कि वो चार्जेस कंटिन्यूसली फ्लो होते रहे, आपको करंट का एक कंटिन्यूस फ्लो मिलता रहे, उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक एनर्जी बोलेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर हम लोग सिर्फ ये बात नहीं कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक एनर्जी दी जा रही है, हम ये बात कर रहे हैं कि उस करंट को हमें मेंटेन भी रखना है। ठीक है, सो टू मेंटेन दैट करंट वी आर गोइंग टू गेट सम एनर्जी एंड द वर्क डन बाय दैट ऑन दी, यू कैन से द चार्जेस, दिस इज नोन एज द इलेक्ट्रिक एनर्जी। और उस इलेक्ट्रिक एनर्जी को वी कैन राइट हियर एज इलेक्ट्रिक एनर्जी एज, देखिए हम लोगों ने यहाँ पे, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव करना है, सो वी कैन राइट दैट कंसिडर एन इलेक्ट्रिक सर्किट थ्रू विच आई करंट फ्लोज फॉर टाइम टी। टी टाइम तक जो है आई करंट फ्लो किया जा रहा है उसमें। और राइट, किसी भी सोर्स से, लेट्स से इफ चार्ज Q फ्लोज थ्रू द सर्किट फॉर टाइम t, तब हम करंट को कैसे लिख सकते हैं, क्या हम करंट को लिख सकते हैं, करंट वुड बी इक्वल्स टू चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम, राइट। तो अगर Q चार्जेस फ्लो कर रहे हैं तो हम T टाइम के लिए कर रहे हैं, तो हम करंट लिख सकते हैं चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, और यहां से हम लोग बता सकते हैं कि जो चार्ज होगा वो क्या होगा, IT, दैट इज द करंट मल्टीप्लाइड बाय द टाइम, कितने टाइम के लिए वो करंट फ्लो हुआ। ठीक है, सो यू कैन गेट द चार्ज हियर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो चीज हमें देखनी है कि मानो अगर V पोटेंशियल डिफरेंस है जो हमने लगाया है सर्किट के ऊपर, ठीक है, तो वहां पर अगर हम देखें उस वर्क डन जो कि उसको करना पड़ेगा कि ये चार्ज मेंटेन रहे, ये चार्ज फ्लो हो रहा है टी टाइम तक के लिए, वो ठीक है, बट इसी चार्ज को मेंटेन करने के लिए हमें कुछ काम करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। एंड मान लीजिए कि वो वर्क डन कौन कर रहा है, द पोटेंशियल डिफरेंस V, यू आर प्रोवाइडिंग इट। सो यहाँ पर हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस विल बी इक्वल टू द वर्क डन डिवाइडेड बाय द चार्ज। सो हम लोग लिख सकते हैं वर्क डन इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय द चार्ज। ओके, ये हम लोग लिख सकते हैं, वर्क डन इज गोइंग टू बी पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय द चार्ज बाय द रिलेशन हियर। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें तो कैलकुलेट करना है भैया पावर, राइट। सो वो जो पावर हम लोग कैलकुलेट करेंगे, राइट, वो ही क्या होगा एक्चुअली में, वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम, राइट। तो देखो अगर हमें क्या करना है यहाँ पर, एनर्जी एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल यूज कर, नॉट दी power here but we are going to get the energy. So यहाँ पर before that power we are going to talk about energy. So this energy, ये जो work done हम यहाँ कर रहे हैं, this same work done is going to be stored as the energy. ठीक है, so यहाँ पर हो जाएगा VQ। अब देखिए इस इक्वेशन से Q equals to IT है, right? So इस IT को हम यूज कर सकते हैं in place of Q. So we can write here as the potential difference current in time t is going to give you the energy. सो इलेक्ट्रिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय द करंट मल्टीप्लाइड बाय द टाइम, जितने टाइम तक करंट फ्लो हो रहा है वो टाइम। ठीक है, सो इफ यू मल्टीप्लाई दीज तब जाके आपको इलेक्ट्रिक एनर्जी मिलने वाली है। सो बेसिकली ये इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या है, वो वर्क डन जो कि हमें करवाना पड़ रहा है सो दैट चार्जेस कंटिन्यूसली फ्लो। ठीक है, अब इसे फटाफट से नोट कर लीजिए।
ऑलराइट, चलिए अभी हमें इलेक्ट्रिक एनर्जी पता चल गई है। अब क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक एनर्जी पता चल गई है, दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पावर ऑल्सो। बिल्कुल सेम ऐसा ही करना है हमको, ठीक है। सो देखो, इलेक्ट्रिक पावर को हमने क्या डिफाइन किया हुआ है, इलेक्ट्रिक पावर को हमने ऐसे डिफाइन किया हुआ है कि कितना इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज की जा रही है पर यूनिट टाइम। अगर ये हमें पता चल जाता है तो हमें पता चल गया भाई इलेक्ट्रिक पावर कितना है। जैसे बल्ब का हम लोगों ने बोला है 60 वॉट का इसका इलेक्ट्रिक पावर है, दैट मीन्स 60 जूल 60 जूल्स की एनर्जी पर सेकेंड यूज करता है वो बल्ब, तभी उसकी पावर 60 वॉट है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे, अगर E इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड इन अ सर्किट इन टाइम t, अगर E एनर्जी यूज की जा रही है इन टाइम t, तो हमें यहाँ पे जो पावर है वो कैसे मिलेगा, E बाई टी। इलेक्ट्रिक एनर्जी हम लोगों ने लिखा था क्या होती है, V I T डिवाइडेड बाई टी, T से T कैंसिल, सो पावर वुड बी V I। तो आपको किसी भी सब इलेक्ट्रिकल जो अप्लायंसेस होते हैं, इफ यू वांट टू नो द पावर ऑफ दोज इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, आपको क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस एंड द करंट, यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई दीज टू, ठीक है। अगर आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो यू कैन गेट द पावर। सो देखिए, इलेक्ट्रिक पावर इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द सर्किट एंड करंट फ्लोइंग थ्रू इट। दो फैक्टर्स आपको चाहिए इलेक्ट्रिक पावर को कैलकुलेट करने के लिए, द पोटेंशियल डिफरेंस एंड द करंट। बट सिर्फ यही दोनों नहीं, हम इसी इलेक्ट्रिक पावर को अलग अलग फॉर्मुलेज में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो वो मैं बताती हूँ, बट फर्स्ट यू नोट दिस डाउन। चलिए, अब एक इलेक्ट्रिक फॉर्मूले का पावर, एक इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला एक्चुअली, सो एक इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला आप लोग को पता चल गया, दैट इज वी आई, ठीक है। इसी वी आई को हम किस तरीके से और भी वेज में लिख सकते हैं, ठीक है। सो देखिए, आपको अभी पता चला है P इक्वल्स टू वी आई, ठीक है। अब हम दो फॉर्मूलेज इसी से और निकालने वाले हैं। यहां पर हम ओम्स लॉ यूज कर रहे हैं, ओम्स लॉ तो हम सभी को लर्न है ना, ठीक है, भूलना नहीं है। ओम्स लॉ को यूज कर रहे हैं, V इक्वल्स टू आई आर, ठीक है। ये है ओम्स लॉ, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू करंट इनटू रेजिस्टेंस, ठीक है। सो देखिए, यहां पर हम क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं V विद आई आर, ठीक है। आई आर से हम उसको रिप्लेस कर रहे हैं, तो P बराबर क्या हो जाएगा, पावर वुड बी V की जगह पर आई आर लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाय आई, सो पावर यू आर गोइंग टू गेट इज आई स्क्वायर आर, ठीक है। ये एक फॉर्मूला आपको मिल गया है ना। यही सेम टू सेम काम हम दूसरा फॉर्मूला लाने के लिए भी करेंगे। अगेन ओम्स लॉ लगाएंगे और ओम्स लॉ जो है वो V इक्वल्स टू आई आर है। यहां से अब की बार क्या करना है, I की वैल्यू हमें क्या करनी है, रिप्लेस करनी है, ठीक है। तो इस बार I रिप्लेस करते हैं, तो पावर क्या हो जाएगा, V मल्टीप्लाइड बाय V अपॉन R, तुम्हें मिल जाएगा पावर V स्क्वायर बाय R, ठीक है। तो यहां पर देखो कितना इजीली तुम्हें तीन फॉर्मूले मिल गए। पहला फॉर्मूला तो वी आई, जिसको ये वी आई याद हो गया तो मतलब वो बाकी के दोनों फॉर्मूले भी यूज कर सकता है, उनको लेकर आ सकता है, डिराइव कर सकता है। सो पी इक्वल्स टू वी आई तुम्हें पता चल गया, ठीक है। नाउ अगर वहां पे तुम v को रिप्लेस कर देते हो तो तुम्हें आई स्क्वायर आर फॉर्मूला मिल जाएगा। अगर I को रिप्लेस कर देते हो तो V स्क्वायर बाय आर फॉर्मूला मिल जाएगा। और ये तीनों ही फॉर्मूले आप इलेक्ट्रिक पावर को फाइंड आउट करने में यूज कर सकते हैं। कई बार क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन एक डायरेक्ट आ सकता है कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस तुमको बता दिया गया है, करंट तुम्हें बता दिया गया है, कैलकुलेट द पावर, मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, पावर आ जाएगा यूजिंग द फर्स्ट फॉर्मूला। नेक्स्ट केस में मान लो कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें तुम्हें करंट जो है बता दिया गया है, रेजिस्टेंस बता दिया गया है और बोला है कैलकुलेट करो पावर, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, करंट एंड रेजिस्टेंस का रिलेशन। फिर आपको तीसरा क्वेश्चन लेट्स से इस तरीके से दे दिया गया है कि आपको पोटेंशियल डिफरेंस बता दिया, आपको रेजिस्टेंस बता दिया और अब बोला है जो है पावर कैलकुलेट करो, तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे V स्क्वायर बाय आर, ठीक है। तो आप तीनों फॉर्मुलेज को यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन कि भाई तुम्हें क्वेश्चन में क्या गिवन है, उसके अकॉर्डिंग यू कैन यूज दीज फॉर्मुलेज, ठीक है। फटाफट से नोट कर लें इसे।
चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स सी द रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड द इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी और इलेक्ट्रिक पावर में बहुत ही सिंपल सा डिफरेंस है। तो देखो यू कैन से रिलेशन भी बोल सकते हैं, थोड़ा सा ही डिफरेंस है, देखते हैं। इलेक्ट्रिक एनर्जी की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक एनर्जी का जो फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव किया था वो क्या था, वो था VIT, राइट। अब अगर यहीं पर मैं इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला लिख दूं तो अभी हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला कैलकुलेट किया था, वो क्या था VI। तो देखो कितना सा डिफरेंस है, एक में T मल्टीप्लाई हो रहा है, एक में नहीं हो रहा है। अब आप इन दोनों में रिलेशन निकाल सकते हैं। आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक पावर जो है, ठीक है, ये हम लोग बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पावर जो है वो क्या है, इलेक्ट्रिक एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम, राइट। अगर आप ऐसा कर देते हैं तो आप इन दोनों को बीच में रिलेशन पता कर सकते हैं और आपको जो भी गिवन होगा आप उसके अकॉर्डिंग टेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको अगर इलेक्ट्रिक पावर गिवन किया होगा, टाइम गिवन किया होगा और इलेक्ट्रिक एनर्जी पूछा है तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला, ठीक है। फटाफट से इसे नोट कर लेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्या है। दिस इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी मतलब जो हम घर में नॉर्मली जीवन में यूज करते हैं, ठीक है, दैट इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक एनर्जी। सो आप लोगों ने सुना होगा कि जब आपका बिल आता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल जब आपके घर तक आता है तो आप उसमें देखते हैं कि भाई हमने 5 यूनिट्स यूज कर ली, 10, 15, 20, 100 इतनी यूनिट्स यूज कर ली इलेक्ट्रिक एनर्जी की। सो व्हाट इज दैट यूनिट? दैट यूनिट इज एक्चुअली द किलोवाट आवर, ठीक है। ये जो किलोवाट आवर है दिस इज द यूनिट नोन एज द कमर्शियल यूनिट और इसको हम सिंपली यूनिट बोलते हैं। तो घर में जब कभी भी इलेक्ट्रिसिटी बिल में आप देखते हैं कि भाई आपने 15 यूनिट्स यूज कर लिया है तो उसका मतलब क्या है, आपने 15 किलोवाट आवर एनर्जी यूज कर ली है, ठीक है। सो ये जो एनर्जी है दिस इज सो कॉमन, ऑलराइट। तो हमारे घर में जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं उनको यूज करने के लिए हमें जनरली क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक एनर्जी चाहिए। इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू दैट अप्लायंस। कोई अप्लायंस का जो एनर्जी है वो सिर्फ 20 जूल्स होता है, किसी का 30, किसी का 40, तो दैट डिपेंड्स ऑन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अप्लायंसेस। इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज होती है। ये इलेक्ट्रिक एनर्जी जब यूज की जाती है एंड व्हेन वी टॉक अबाउट कि भाई हम कितनी देर के लिए इस एनर्जी को यूज कर रहे हैं, कितने टाइम के लिए इस एनर्जी को यूज कर रहे हैं, दैट कम्स टू द पावर, ठीक है। ये जो एक्चुअली में हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर ये जो एनर्जी यूज कर रहे हैं विद टाइम, तो यहाँ पर आप कितनी एनर्जी यूज कर रहे हैं दैट कम्स इनटू द टर्म्स ऑफ यूनिट, कितने यूनिट्स में आप यूज कर रहे हैं, ठीक है। सो अगर आप सिर्फ 100 यूनिट्स यूज कर रहे हैं दैट मीन्स आपने 100 किलोवाट आवर एनर्जी को यूज किया है, ठीक है। और यहाँ पे हमें ये बात पता है कि अगर हम इलेक्ट्रिक एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे तो इट वुड बी पावर मल्टीप्लाइड बाय द टाइम। कितने पावर का अप्लायंस है, कितने टाइम तक आपने यूज किया है, अगर ये आप कैलकुलेट करते हैं तो आपको मिल जाएगा कि भाई कितनी एनर्जी है, कितनी एनर्जी आपने यूज की है, ठीक है। तो ये आपको पता चल जाएगा, राइट। यहाँ पर जो हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी वो क्या होती है, पावर इनटू द टाइम, दैट इज किलोवाट। किलोवाट इज द पावर मल्टीप्लाइड बाय द टाइम, आवर। तो दिस इज नोन एज द यूनिट एज द एनर्जी। एनर्जी का यूनिट है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट है, जिसे हम सिंपली 1 यूनिट बोल देते हैं। अब इसे बताया किसने, इसे बताया है बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट ने, इन्हें बताया है। ये जो किलोवाट आवर है इसको ही हम दूसरे टर्म्स में इनको बोल देते हैं। सो बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट को किसके रूप में बताया गया है, यूनिट के, यानी कि किलोवाट आवर के रूप में बताया गया, इसीलिए इसको हम सिंपली यूनिट भी बोल देते हैं, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं हाउ टू कैलकुलेट द रिलेशन बिटवीन द किलोवाट आवर एंड द जूल, ठीक है। सो किलोवाट आवर और जूल के बीच में कैसे रिलेशन हम पता कर सकते हैं, लेट्स सी, ठीक है, लेट्स सी हम कैसे पता कर सकते हैं। तो देखिए 1 किलोवाट आवर, ठीक है, और हमें बताना है जूल्स, ऑलराइट। अब देखो हमने ये सीखा था कि जो 1 वॉट होता है वो होता है 1 जूल
पर सेकेंड, ठीक है। यानी कि ये जो वॉट है इसको हम जूल पर सेकेंड में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम क्या कर रहे हैं, 1 किलो वॉट आर को देख रहे हैं। किलो का मतलब कितना होता है, 1000। तो यहाँ पे तो हम लिख सकते हैं कि भाई 1000 वॉट मल्टीप्लाइड बाय आर। आर को हम जब मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 60 मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो फिर से 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आर को हम लिख सकते हैं 60 इंटू 60 सेकेंड, ठीक है। तो इट वुड बी हाउ मच, 10 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 60 इज गोइंग टू गिव यू वॉट सेकेंड, ठीक है। एंड यहाँ पर आपको मिल जाएगा 36 इंटू 10 की पावर 5 वॉट सेकेंड। और इवन अगर आप यहाँ पर लिख देते हैं तो इट वुड बी 3.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 6 वॉट सेकेंड, जिसे हम लिखेंगे 3.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 6 जूल। तो अगर आप इस 1 किलोवाट आवर और जूल को देखना चाहेंगे, इनका कनेक्शन देखना चाहेंगे, तो यू कैन सी 1 किलोवाट आवर इज इक्वल्स टू 3.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 6 जूल्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो मतलब एक यूनिट के अंदर जो हम घर में यूनिट यूज कर रहे हैं, उस एक यूनिट में कितनी एनर्जी है, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल्स एनर्जी उसमें होती है, ठीक है। इसके अलावा देखिए एक और यूनिट है जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब एक इलेक्ट्रॉन को, है ना, भेजने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए जितना एनर्जी आपको चाहिए, दैट इज नोन एज द 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। देखो, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज एक्सेलरेटेड बाय द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इज नोन एज द इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसका कितना होता है, यू कैन से वैल्यू इन, यू कैन से जूल, वो होता है simply the amount of charge on that electron, that is 1.6 into 10 की पावर माइनस 19 जूल। सो एक इकलौते चार्ज को, एक इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए जितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाता है, दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज गोइंग टू बी द 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट एनर्जी इज गोइंग टू बी द 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। उसे हम किस तरीके से लिख सकते हैं जूल की टर्म्स में, 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर माइनस 19 जूल्स, ठीक है। फटाफट से नोट कर लीजिए इसे। Alright, now let's move on up to the calculation of electricity bill. तो देखो आप किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी बिल का कैलकुलेशन कर सकते हो, उसके लिए आपको क्या जानना है, पावर एंड टाइम, ठीक है। सो देखिए आपको क्या करना है, आपको पहले कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, लेट्स से इलेक्ट्रिक हीटर, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, अगर आपको जानना है कि आपने इलेक्ट्रिक हीटर को यूज करने में कितना एनर्जी यूज किया है, कितना इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज किया है, इफ यू वांट टू नो दैट, तो क्या करना होगा, सबसे पहले आपको उसका पावर देखना होगा, कितने इन वॉट में, वॉट में यहाँ पर है पावर देखना होगा, ठीक है। फिर आप देखेंगे नंबर ऑफ अप्लायंसेस, कि भाई जैसे अगर हम सिर्फ इलेक्ट्रिक हीटर की बात करें तो 1 नंबर ऑफ अप्लायंस है, हो सकता है आप 2 इलेक्ट्रिक हीटर्स यूज कर रहे हो एक साथ, सो वो 2 हो जाएंगे। सो नंबर ऑफ अप्लायंसेस, देन टाइम, कितने घंटे तक आपने उसे यूज किया, 2 आवर्स, 3 आवर्स, 4 आवर्स, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1000 कीजिए, तो आपको किलोवाट एनर्जी मिल जाएगी, आपको यूनिट एनर्जी मिल जाएगी। तो मतलब उस इलेक्ट्रिक हीटर को यूज करने के लिए कितना एनर्जी आपने यूज किया है, ठीक है। तो ये आपको पता चल जाएगा। एंड अब आप पूरे तरीके से सभी का यूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि पावर, अभी जैसे आप इलेक्ट्रिक हीटर का अलग यूज करो, फिर आप फ्रिज का अलग जो है कैलकुलेट करो, देन कैलकुलेट करो, लेट इट बी, और वेरियस टाइप्स ऑफ अप्लायंसेस, फैन, बल्ब, इन सब का यूज करो, ठीक है। इन सब का जब आप कैलकुलेट करेंगे दिस एनर्जी, तब आप उन सभी एनर्जीज को ऐड ऑन करके आप पता कर सकते हैं कि आपको टोटल टाइम में कितना आपने एनर्जी यूज कर लिया है, ठीक है। तो इसकी हेल्प से आप अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, यूजिंग द सेम फॉर्मूला हियर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द बेसिक थिंग, दैट इज द डिस्टिंक्शन विद एनर्जी। सो देखो एनर्जी क्या होता है, वो होता है कि कितना काम किया गया है, ठीक है, और जो पावर होता है वो ये बताता है वर्क डन पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो जैसे हम लोग बता रहे हैं कि कोई एक वीक पर्सन है, ठीक है, तो वो वीक पर्सन धीरे धीरे काम करेगा, उसके अंदर पावर बहुत ही कम है क्योंकि टाइम वो ज़्यादा ले रहा है, तो उसके अंदर क्या होगा, पावर बहुत ही कम होगा। वहीं पर अगर हम किसी स्ट्रॉन्ग मैन की बात कर रहे हैं तो वो क्या करेगा, बहुत ही कम टाइम में ज़्यादा काम कर देगा, तो उसका मतलब उसकी पावर ज़्यादा है। सो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट एनर्जी एंड टाइम, इन दोनों को रिलेट करते हैं, वी आर गोइंग टू गेट द पावर हियर, ठीक है। ऑलराइट,
सो दिस इज द होल चैप्टर वी आर गोइंग टू एंड टुडे. अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रिवीजन करेंगे एंड देन वी विल बी डूइंग सम क्वेश्चंस, ऑलराइट, एंड देन वी आर गोइंग टू सी अप टू द नेक्स्ट चैप्टर. ऑलराइट, सो लेट्स एंड दिस लेक्चर. So thank you so much for watching the video. Please like it, share it, subscribe it, and do not forget to click on the bell icon so that you will remain notified for the upcoming videos. Thank you so much.